Students, myself Professor Deepak Sani. Today we will do the structure of seminiferous tubules, spermatogenesis and the hormones associated with it. This is the transfer section of the testis where you can see these seminiferous tubules. These are the seminiferous tubules. In longitudinal section it appears like this. Like this is the outer layer of outer layer that is called tunica vaginalis. Then this is a tunica albuginea which divide the testes into compartments. Around 250 compartments are formed, and in each compartment there are present 1 to 2 seminiferous tubules, and the inner end of the seminiferous tubules become straight to form tubuli recti. Then they will form the rete testis, then vasa francia, then epididymis, then vas deferens is there. Now we will do the basic. What is the basic structure of the seminiferous tubules? If you will see the basic structure of the seminiferous tubules, the seminiferous tubules are lined by the germinal epithelium. Germinal epithelium are cuboidal in nature, and germinal epithelium has two types of cells. One is the Sertoli cells, another is the primary germ cells. Here we have made Sertoli cells are also called sustentacular cells. They are large, they are elongated, they are also called as a nerve cells. And in between the Sertoli cells there are present the primary germ cells, which will produce the spermatogonia, and the spermatogonia will form the sperm is there. Sertoli cell has very important role. There are very different functions of the Sertoli cell. First of all, it will phagocytize the injured or a dead sperm cells are there, and they will also form the blood testis barrier. This testis barrier is very important. How it is very important? Because it will not allow the macrophages and antibodies present in the blood to enter into the seminiferous tubules, due to which the spermatogonia, spermatid and spermatozoas are protected from the macrophages or antibodies present in the blood. Now I will show you this. You will see that these are the seminiferous tubule. This is a structure of seminiferous tubule showing these Sertoli cells, and these are simply primary germ cells. So you see this is one Sertoli cells, this is another Sertoli cells. They are joined together by the tight junctions, and this tight junction act as an blood testis barrier, which will not allow the blood from outside to enter inside the seminiferous tubules. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज होती हैं उसको वो अंदर नहीं आने देता. उसी तरह यहाँ पे भी एक है, ये देख रहे हो आप, ये यू सी दीज आर द ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक सर्टोली सेल जा रहा है, ये भी एक सर्टोली सेल जा रहा है, वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय टाइट जंक्शंस, और ये बनाते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर. ठीक है ना, जो कि ब्लड जो बाहर जो ब्लड है उसमें जो ये देख रहे हो मैक्रोफेजेस, ये इसको अंदर नहीं आने देता, और एक तरह से स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजुआ वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखता है. दूसरा ये है, ये एक्टिन और इनिबिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इनिबिन जब क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द स्पर्म बन जाते हैं तो इनिबिन प्रोड्यूस होता है, और इनिबिन क्या करता है कि ये एंटीरियर लोब पे जाके FSH और LH की प्रोडक्शन को इनिबिट करता है. ठीक है ना, डेट विल इनिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. मैं यहाँ से आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ. ये देख रहे हो, दिस इज इनिबिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल्स एंड विच विल प्रिवेंट द anterior which will go to the anterior lobe of pituitary and prevent it from producing the FSH and LH. इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हार्मोनल रेगुलेशन भी साथ ही बताता हूँ. देखो, जब प्यूबर्टी आ जाती है तो GnRH की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. मेल के अंदर प्यूबर्टी जो होती है 13-14 ईयर्स की एज में लिया जाता है. GnRH हाइपोथैलेमस से आता है, जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. वो हाइपोथैलेमस पे से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाता है. ठीक है ना, ये देखो, जैसे ये GnRH आ गया, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करती है? FSH एंड LH प्रोड्यूस करती है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनिजिंग हार्मोन्स आर देयर. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये F फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, S फॉर सर्टोली सेल. ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है. सर्टोली सेल के ऊपर रिसेप्टर फॉर FSH होते हैं. जो LH है, ल्यूटेनिजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है. ये हमने देखा कि ये यहाँ पे आपने डायग्राम भी देखा, ये
कि ये दीज आर द सर्टोली सेल, FSH सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल्स हैं, LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। जब FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर लेता है तो सर्टोली सेल अपना फंक्शन शुरू कर देता है। जब एक्सेस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है तो यही सर्टोली सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन, और वो जो इनहिबिन है अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाता है और FSH और LH की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इनहिबिन हमेशा अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जाके ही अफेक्ट करता है, ठीक है। जब मेल इजैकुलेट कर देता है और स्पर्म कम हो जाते हैं तो इमीडिएटली स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेलरेट हो जाती है। उस समय सर्टोली सेल एक एक्टिविन प्रोड्यूस करता है, एक्टिविन जाता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में और FSH और LH को प्रमोट करता है। FSH आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वो भी मैं बताऊंगा क्या रोल है, वो हेल्प करता है। और LH क्या करता है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, और लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है कि मैंने आपको बताया जब प्यूबर्टी आ जाएगी तभी GnRH आता है। टेस्टिस तो पहले भी होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं, 10, 5, 8, 10 साल की उम्र में भी होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि GnRH नहीं है। GnRH प्यूबर्टी के बाद आना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मार्की, स्पर्म SPERMARCHE, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जिसको हम बोल देते हैं धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाएगी तो क्या होता है कि मेल क्लाइमेक्ट्रिक कंडीशन आती है। स्पर्मार्की तो होता है कि स्टार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर जैसे जैसे एज बढ़ जाती है अराउंड द एज ऑफ 50 के पास धीरे धीरे जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाती है, स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं मेल क्लाइमेक्ट्रिक कंडीशंस, और एंड्रोपॉज भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। और ये आपने देखा कि जब लेडिक सेल ने जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया है, जब मैंने आपको कहा है कि एक्सेस में स्पर्म आ जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनहिबिन देख लो, इट इज़ ओनली इनहिबिटिंग द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है कि वो GnRH ना प्रोड्यूस करे, और एंटीरियर लोब को भी स्टिमुलेट कर एंटीरियर लोब पे भी अफेक्ट करता है कि वो FSH और LH ना प्रोड्यूस करें। जबकि इनहिबिन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो सिर्फ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक रहता है। टेस्टोस्टेरोन का जो एक्सेस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो GnRH की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है। कैसे? बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस। और FSH और LH की भी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है बाय एक्टिंग ऑन एन अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जबकि इनहिबिन सिर्फ अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस और अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दोनों पे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो एक फंक्शन है सर्टोली सेल का कि ये एक एंटी मलूरियन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये फीटल स्टेज में प्रोड्यूस होता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जब FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है तो सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जब मैंने कहा है कि GnRH आ गया, FSH आ गया, LH आ गया प्यूबर्टी के बाद, तो FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। सर्टोली सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। वो क्या करते हैं, जो बाहर जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो कि लेडिक सेल ने प्रोड्यूस किया होता है उसको वो अंदर लेके आते हैं और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इस प्राइमरी जर्म सेल पे एक्ट करेगा और इसको स्टिमुलेट करेगा कि वो आगे माइटोटिकली डिवाइड करे और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल्स, ठीक है ना, दैट विल हेल्प इन कंसंट्रेटिंग द टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये तभी प्रोड्यूस होंगे जब FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। जबकि मैंने एंटी मलूरियन हार्मोन जो बोला जो कि सर्टोली सेल प्रोड्यूस करते हैं वो फीटल स्टेज में ही प्रोड्यूस कर देता है, जब बर्थ के बाद नहीं वो हार्मोन प्रोड्यूस होते। उस एंटी मलेरियन हार्मोन का क्या रोल है, दे विल स्टिमुलेट द और प्रमोट और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये प्यूबर्टी के बाद ही प्रोड्यूस होती है जब FSH और LH प्रोड्यूस हो जाते हैं। FSH मैंने फिर से बता रहा हूँ सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं, सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, और जो LH है
जिसको हम ल्यूटेनिजिंग हार्मोन भी कहते हैं, वो लेडिक सेल पे एक्ट करते हैं. L फॉर ल्यूटेनिजिंग, L फॉर लेडिक, S फॉर स्टिमुलेटिंग, S फॉर सर्टोली सेल. इससे आप याद रख लेना. उसके बाद क्या होता है कि अब हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है ना. डेट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. मैंने पहले बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस तभी शुरू होगी जब प्यूबर्टी आती है, GnRH आता है, ठीक है. तो जब GnRH आ गया, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाता है, FSH और LH प्रोड्यूस होता है. LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल. वो जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, उसको वो एक्टिवेट करता है कि वो डिवाइड करें और टू प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया. जबकि एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि डायरेक्टली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दे आर लाइंड बाय द स्पर्मेटोगोनिया. लेकिन बाकी बुक्स में ऐसे होता है कि दे आर लाइंड बाय द प्राइमरी जर्म सेल्स एंड दे प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया. बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं. ये सारा मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर आता है. स्पर्मेटोगोनिया भी 2 टाइप के होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया A टाइप एंड स्पर्मेटोगोनिया B टाइप. जो स्पर्मेटोगोनिया A टाइप है वो स्टेम सेल की तरह काम करता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो B है वो आगे स्पर्मेटोजुआ बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द प्राइमरी जर्म सेल्स. इसने एक स्पर्मेटोगोनिया A बनाया और दूसरा ये स्पर्मेटोगोनिया B बनाया, ठीक है. और ये जो स्पर्मेटोगोनिया B जो है वो आगे मल्टीप्लाई करेगा और आगे ग्रो करेगा और आगे प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगा और वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और जबकि ये जो स्पर्मेटोगोनिया A जो है वो स्टेम सेल की तरह ही काम करता है. ये फर्दर स्पर्मेटोगोनिया A और स्पर्मेटोगोनिया B बनाता है. इट इज़ अ स्पर्मेटोगोनिया B विच प्रोसीड्स टू फॉर्म द स्पर्मेटोजुआ ओब्लिक स्पर्म, ठीक है. अब उसके बाद ग्रोथ फेज आता है. व्हाट हैपन्स इन एन ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो ये आप ग्रोथ फेज देख रहे हो, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं जो बने थे मल्टीप्लिकेटिव फेज में, उनका साइज़ बढ़ जाता है. उनका साइज़ बढ़ जाता है और उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जैसे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है. ये ग्रो कैसे करता है? बाय टेकिंग द एनरिचमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आर देयर. बाय टेकिंग द एनरिचमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल से एनरिचमेंट लेता है. ये देखो आप, ये कैसे स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, दीज आर द सर्टोली सेल्स आर देयर. ये सर्टोली सेल से एनरिचमेंट लेता है और आगे ग्रो कर जाता है, ठीक है. इसमें एक और मैं आपको दिखाता हूँ. इसमें और दूसरा डायग्राम देखोगे आप, दिस इज ऑल्सो अनदर डायग्राम. आप इसमें देख रहे हो, दीज आर द सर्टोली सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. इसमें दिस अनदर डायग्राम इज देयर. आप देख रहे हो इसके अंदर कैसे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया का बनना, कई सारे स्पर्मेटोगोनिया का बनना वो मल्टीप्लिकेटिव फेज में है. बाद में ग्रोथ फेज आएगा. ग्रोथ फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे उनका साइज बढ़ जाएगा और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर आती है मैचुरेशन डिवीजन. फिर आती है मैचुरेशन डिवीजन. मैचुरेशन डिवीजन इज बेसिकली ए मियोसिस. इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैचुरेशन डिवीजन 1 एंड मैचुरेशन डिवीजन 2. मैचुरेशन डिवीजन 1 is basically meiosis 1 and maturation division 2 is basically a meiosis 2. मैचुरेशन डिवीजन 1 के अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मैचुरेशन डिवीजन 1 की, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए. 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन करते हैं. दे विल अंडरगो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने. यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बने. और ये स्पर्मेटिड जो हैं ये अपने आप को इम्बेंड कर लेते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर. ये अपने आप को इम्बेंड कर लेते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर. और ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाता है. स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होना हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हो कैसे ये स्पर्मेटिड
ये कैसे ये स्पर्मेटिड हैं, ठीक है ना, ये इसके अंदर इमेजिनेट हो गए हैं सर्टोली सेल्स के अंदर, और ये देख रहे हो धीरे धीरे कैसे ये स्पर्मेटोजुआ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ इज कॉल्ड एज एन स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी मैं आगे आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ स्पर्मियोजेनेसिस का। ये देखोगे कैसे एक स्पर्मेटिड जो है पूरा एक स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हुआ है। स्पर्मेटिड जो होता है ये नॉन फंक्शनल स्पर्म है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि एक जो स्पर्मेटोजुआ है ये फुली फॉर्म वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पर्म है, ठीक है ना। और ये जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बन जाता है तो ये स्पर्मेटोजुआ सर्टोली सेल को छोड़ देता है, और वो सर्टोली सेल को छोड़ के वो बेसिकली जाता है रीटिटेस्टिस से चल जाता है वास अफ्रेंशिया से एपिडिडमिस में चल जाता है, और एपिडिडमिस में स्टोर हो जाता है। तो रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल को हम स्पर्मिएशन भी कहते हैं। वी आल्सो नेम इट एज एन स्पर्मिएशन। ये कुछ टर्म्स मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने देखा कैसे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। इसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कह देते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है, इसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कह देते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, स्पर्मेटिड का बनना, ठीक है ना। ये देखो ना, ये चीज़ हो गया। एक हमने देखा कि कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कैसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड बने, इसको मैं कहूँगा स्पर्मेटिडोजेनेसिस। वो था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, ये आ गया स्पर्मेटिडोजेनेसिस। फिर हमने देखा कि कैसे एक स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हुआ, कैसे एक स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हुआ। इसको कन्वर्ट करने में सर्टोली सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं। हमने देखते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया को पूरे के पूरे एक स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होने में 64 डेज लग जाते हैं, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया को पूरे के पूरे स्पर्मेटोजुआ कन्वर्ट होने में 64 डेज लग जाते हैं, और एक दिन में 10⁻11 से लेकर 10⁻12 तक स्पर्मेटोजुआ प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हम देखें तो 1500 स्पर्मेटोजुआ पर सेकंड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बनने के बाद ये एपिडिडमिस में जाते हैं, वहाँ पे ये मैच्योर होते हैं, मोबिलिटी अटेन करते हैं, वहाँ पर ये 1 मंथ तक रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो हार्मोन्स का रोल भी बता दिया, और सर्टोली सेल्स का भी रोल बता दिया, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस बता दी। उसके बाद जो सर्टोली सेल्स हैं वो कुछ ऐसा फ्लूइड भी सिक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म को जब एक स्पर्मेटोजुआ बन जाता है तो उसको सर्टोली सेल से जब वो एपिडिडमिस में जाता है तो एक वो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसकी वो ट्रांसफ़र में इसका रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये दे कैन आल्सो सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन इज देयर, दिस इज आल्सो रोल प्लेड बाय द सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल्स के बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, वो मैंने आपको बताए। ये बताया कि फैगोसाइट जैसे जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो कोई स्पर्मेटोगोनिया प्रॉपरली स्पर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता, तो उसको फैगोसाइटाइज कर लिया जाता है बाय द सर्टोली सेल्स। ये भी बता दिया, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बता दिया, नीबिन एक्टिन का भी रोल बता दिया, एंटी मलूरियन हार्मोन का भी बता दिया, एबीबीपी का भी बता दिया, एबीपी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ, secrete fluid which will help in the transfer of spermatozoa to the epididymis, and they can also synthesize estrogen from the testosterone are there, थोड़ा सा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग अलग फेज बताए, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, सारा इसके जो स्टेप्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस बताया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ओके देन।